just want to give a little bit of brief what we are going to do over here, right? First of all, I would like to give a very warm welcome to all of you, as all are the participants for the CCAT entrance examination, right? So we are starting for a series for CCAT preparation, right? And on the behalf of SIDAC Mumbai, which is located at SIDAC Kharghar, we call it as a SIDAC Kharghar, and the location is at Kharghar, Navi Mumbai. From that center, I am Kiran Wagmare. I am course coordinator of a PG DAC course. And from today onwards, we are starting with the CCAT preparation series in the form of webinar. All the aspirants, those who want to score really good, what they can prepare, that introductory guidance that we are going to provide in this series. For today's session, actually we are targeting for two important sections of the modules. That is, one is our data structure and the second one is the operating system. I'm going to provide you a little bit of insight on both the segments. As you all are aware, CCAT examination basically having the three sections, section A, section B and section C. So we are targeting today section A part and section B part, where data structure you will get some sort of MCQ questions. So if you observe the books mentioned in the syllabus and all, there are a lot of contents that you need to prepare. So in a short span of time, it is really challenging what to prepare, how to prepare, right? So that's why I'm here to guide you on the data structure part, what you can prepare first. First, I will give the briefing about the data structure, and then we will switch over to the operating system. Okay, so majority part I am going to cover on from the data structure. So let's start. Let me share my screen, and then we can start with the presentation based on the data set. Okay. So if you observe the algorithms and data structure, this is one of the component which is mentioned in your syllabus. So when we are preparing at that point of time, certain important parameters which you should not miss out while preparing the algorithm and data structure, that I am going to highlight. If you see the syllabus, first we should understand why we need it, because whenever MCQs are set, there may be many different kind of applicative questions will be there, right? So from that point of view, we should understand what is the need of a data structure. If you observe from placement point of view, from industry point of view, data structure is a very important component. Why it is called as important? Because it is a problem solving technique. It provides us a different sort of problem solving. So let's understand what is the meaning of problem over, right? We always mention that data structure always support for problem solving. So what is this problem? That problem is nothing but one doubt, one difficult matter, one barrier, right? And our goal is to overcome that barrier. So whenever we want to overcome that barrier, we need a solution, right? And how to achieve that solution, for that process we need to apply the technique, right? So from here, that problem solving technique, this concept has been come in the data structure. Whenever we try to understand any of the problem, that time we will try to define the problem, we try to understand that problem, we try to identify the potential solution for that. Then we try to evaluate whether it is the best one or more better solutions are available. Then according to our decision, we jot down the plan for that, and then we will give the remark that no, this is the best option for us, right? I'll give you one simple example for this. Let's take an example of crossing of a road, right? You want to cross the road from side A to side B. How to go? There are multiple options. We simply tell stop the vehicle and we will try to walk, right? The second option is you can see the zebra crossing and you can go ahead. What are the steps that you are going to follow to identify the solution? That is your technique, right? So any simple problem in your day-to-day life, you can see various different problems, but all the problems need a particular sequence of steps to be executed to get a proper best solution, right? So there are particular chain or cycle over there, right? You need to understand the problem. We will call it as recognizing the problem. What is the problem, right? It is a real time problem. हमारी technical language में हम इसे real time problem कहते हैं.
Then we try to identify the nature of the problem. Then we try to define the problem. Then we try to identify the best solution for it, right? There are many logical problems that you can see in our day-to-day life. You want to travel from Mumbai to Goa. You want to get married, right? What will be the marriage criteria, right? You want to withdraw money from the ATM. What will be the process, right? Again, you want to transfer money from one UPI to another UPI, right? Again, you want to do the online shopping from any of the website. What should be the process? That sequence, that steps gives you the proper solution. These type of problems are the logical problems, but we will call it as logical real life problems, right? And data structure is one of the domain where we get lot of logical real time problems, because in industry whatever the application that has been designed, those are designed for the real time logical problems. These are the solutions for the real time problems, right? Now if you observe the data structure has two segments of it. Data structure has two segments. So there are two important parameters that we can say. One, it is called as algorithm, and the second one, it is called as a data structure, right? If we talk about the algorithms, yes, algorithm has something called as a design technique. These design techniques are the different solutions for one single problem they will provide us. But which one is the best one, that we need to understand. For that purpose, we have something called as a complexity, time complexity and the space complexity. And these all together construct the actually algorithms, right? The second section, if we observe, there is a second domain, entire domain, that is called as a data structure. Data structures are divided basically in linear and non-linear pattern. So if we observe the linear, whichever are in the sequence, right? For example, arrays, for example, stack, queue, list, all these are the in sequential. That's why it is called as a linear data structure, right? And a non-linear data structure like the trees, specifically binary trees, right? Multi-way trees, binary search tree, AVL trees, right? These are some of the names, right? Again, we have non-linear data structure called as graph. In graphs, we have something called as spanning trees, minimum spanning trees, and so many things. I'm aware that everyone may not be aware of all the terminologies, right? But if you are preparing for your CCAT examination, then out of all these content, what should you read, what should you prepare, what type of questions you can plan, all that overview I will start it now. Okay, so that you can understand it very well and you will get a clear-cut idea what you should prepare, right? Before we start with the data structure, I would like to give one small idea also, right? There are Nicholas Wirth and the Linus Torvalds. These two are the researchers. They have designed a concept called as computational thinking. This Nicholas Wirth has given the definition: algorithms plus data structure is equals to the program. He has given that concept. And that's why algorithms and data structure combinedly form one entire module or subject in our entire domain. Linus Torvalds, everyone is aware that he is the person who has come up with the concept called as Linux kernel, right? And in today's date, so many Linux distributions has been available. So both of these people have given a lot of contribution in terms of algorithms and data structure. If we observe today's date, everywhere algorithms are utilized. You can take any big body company, Google, IBM, Netflix, Oracle, Yahoo, any company you go ahead, they are using variety of algorithms. There are different types of search engines, GPS navigation, self-driving cars, right? E-commerce applications, banking applications, medical diagnosis, right? Robotics. Everywhere different types of algorithms are getting used, right? And that's why a lot of research work is going on in this algorithm and data structure. We are in the fast age, right? If we observe every minute how many changes are going on. This is the recent record in internet about the 2025, right? In 160 seconds, in 1 minute, 3.47 million videos has been watched on a YouTube. 16,000 news on the video will be going on the TikTok, right?
If you check the Instagram, in 1 minute, 65,000 photos has been uploaded and getting forwarded. So this is the speed of our today's date, right? If you observe, this technology needs to be enhanced, enhanced, and enhanced. Then only we are able to survive with this huge amount of data. That's why in the modern world of computing, big data and data science, these concepts are getting used, right? Where huge volume, huge variety, huge velocity, and variability, different types of data can be managed very properly. And that's why this is the reason why we need a efficient data structures for us, right? Then only we are able to implement AI enabled intelligent computational systems like smart homes, cars, smart health, smart robots. All these applications are possible, right? So this is the need why we need algorithms and the data structure. Now let's start with the concept, right? This concept always give us a little bit idea. I'll start with a very basic, that is a data. Since it is a data structure, what is the meaning of a data? Data means it is a collection of raw facts, right? And what is the meaning of algorithm? It is a sequence. Whatever the raw facts are available, that we are converting into sequence, some process, some steps, right? These are the instructions. And when we try to implement these two things together with the help of some programming language, maybe C, maybe C++, Python, Java, any programming language, right? Then it will become a program, right? Now, when we implement any program, at that time, we need to save the data, update the data, right? Huge amount of data is available. So to manage it efficiently, we need a data structure, right? So in this way, it is getting connected actually, right? So I will correlate my all terminologies in one statement now, right? Over here, if you can solve any real life problem in today's date, if you want to solve any real time problem, then we need to develop an algorithm. When we combine this problem and solve this with the help of algorithm, we are able to get the program. Program is nothing but the implementation of that algorithm in some sort of programming language, right? And this program may have some input which will generate certain output, right? So to make this input and output very efficient, we make use of data structure. So in this way, this entire thing combined together and form a united solution. For example, I'll give a simple example in our day-to-day life, right? GPS. Everyone is using this GPS, right? Everyone is keep on using the GPS. So what we try to do in that, we just try to navigate, right? We just try to navigate. Suppose I want to go from one place to another. Suppose I want to go from this Kharghar to Belapur, right? So my source and destinations I have mentioned. It will show me the shortest path, right? So to implement this algorithm, this concept, to get the shortest path, which algorithm need to be implemented, right? That algorithm, which data structure is required to be implemented in the algorithm. In this way, every real problem has to be analyzed, understand, and then we try to identify the proper solution. Yes, right? So this is the way how we work with the algorithms and the data structure. Let's go one more step inside that, right? Since we are discussing about the algorithm, official definitions are given in the books. Algorithm is a sequence of unambiguous instructions, operations for solving the problem, for obtaining a required output, for any legitimate input in the finite amount of time, right? I will tell you in a very simple language, right? Suppose I want to prepare a tea. What will be the solution, right? We just need a boiling water, we just need the tea bags, and we just need the milk. And if you are interested in sugar, then you can add sugar also, right? So we just need to follow a process: boil the water, add it in the hot cup, then add the tea bag, add sugar, add milk, right? Stir it, and your tea is ready, right? The steps that we have followed, that is actually the algorithm. So that's why we say that the steps that is given in sequence with logical meaning is nothing but the algorithm. Now we want to make this algorithm efficient. क्योंकि अच्छा algorithm क्या होता है?
To define that, we need to understand the characteristics. Every algorithm must satisfy certain characteristics. Every algorithm must have some input. कुछ तो भी input जाना चाहिए ना. Input में जैसे टी में water दिया, sugar दिया, right? Tea bags दिया. So some input should be there, right? Similarly, if you are providing some input, some result should be there. So some output should be there. So there must be at least one output should be there for every algorithm, right? Whenever you are combining the things, there should not be any kind of confusion. Steps must be very clear. पहले मुझे शुगर ऐड करना है कि पहले मुझे वाटर ऐड करना है. There should not be any confusion. Steps should be very clear, very precise. That's why this concept is called as unambiguous, right? Every content that you are adding, that has to be a limit. For example, 1 spoon of sugar, right? 1 tea bag. That number is finite. Some numbers, whatever we are mentioning, that number is finite. So it means that everything must be limited in the algorithm, right? करे जा रहे हैं, ऐड करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. So that's why finite term is very important, right? Then only your algorithm will become the effective, right? So once your algorithm is ready, then it can be implemented in any programming language. आप जो भी algorithm बना रहे हो real time solutions के लिए, it is available and now you can implement in any programming language, Python, Java, or C, C++, whichever programming language you want to build your application, right? So whatever the pointers I just now mentioned, all are nothing but the characteristics of the algorithm. And everyone must understand that all these characteristics are very important from the examination point of view, right? Now, there are different strategies. Strategies means techniques, right? We just saw the things and we have taken a guess, right? Sometimes we try to divide it in some partitions, then we try to take a call. Sometimes we want best. चिप्स के पैकेट से इनमें से बेस्ट कौन सा है, चॉकलेट्स के ऑप्शन से इनमें से बेस्ट कौन सा है. ग्रीडी अप्रोच, राइट? हम रैंडमली हाँ दे दो, मुझे कुछ भी दे दो, आई विल टेक इट अप, राइट? सो दैट इज अ डायनामिक अप्रोच. All this our real time behavior is converted into different strategies of the algorithm. आपके CCAT के syllabus में there are 2 strategies mentioned, that is one is greedy approach and another one is divide and conquer. So you focus on only on 2, that is also enough. But there are many strategies as mentioned in the algorithms, right? Out of this, we can see the importance of these strategies with the algorithm. All the strategies can implement one program, one application, right? But which one is the best? That is up. How to measure it? So to measure it, we can measure the performance of the algorithm. How to measure it? By applying the analysis, right? Analysis of algorithm हम लोग करेंगे and we will identify how is this algorithm. Now, to measure this performance, there is something called as correctness feature, right? कितना correct output देता है, time efficiency, कितने कम time में execute करता है, space efficiency, how much space, कितना minimum space वो consume करता है. ये सारे parameters we need to check for the algorithm performance, right? So that's why there are 2 majorly measures. The one is called as time complexity, कम से कम टाइम में एग्जीक्यूशन होना चाहिए, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? कम से कम जगह में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए. सो लेस मेमोरी इज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेटर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. In terms of our mathematical modeling, because algorithms are completely based on the mathematics, a lot of discrete mathematics are involved, right? But in that, in simple terms, we can measure it in the order of, there are 3 different situations for every algorithm when algorithm is performing the best. Sometimes algorithm is performing worst, and sometimes algorithm is performing the average. Based on that, we can calculate the time complexity for best case, time complexity for worst case, and the time complexity for the average case. But anytime your algorithm is performing average and best, that doesn't matter. What matters? Matters that worst situation में algorithm कैसे perform. So every time, whenever we are trying to measure the performance, at that time, we need to check out about the worst case time complexity. I hope you all are understanding, right? So what I'm saying, every time we should check for the worst case time complexity
और वर्स्ट केस स्पेस काउंट, बुरे से बुरे सिचुएशन में एल्गोरिदम कैसे परफॉर्म करेगा. That is only the actual testing of the algorithm. And based on that, different types of classification. You can see over here, order of 1, order of log n, order of n, right? Order of n log n, order of n square, 2 to the power n. So all these are the different types of time complexity, right? I'll give you one example. For example, if we have 10 number of inputs, I'm giving one program is there, and in that program, I'm giving some input. Let me say this is my x-axis where I'm providing the number of inputs, and this is my y-axis where I'm calculating how much time it is taking to execute. चलो मान लो कि I want to do the calculation. I want to do the factorial calculation or addition of two numbers, right? तो I am adding two numbers. Means यहाँ पे मैं input में I will try to tell over here at this point. At this point, I am saying my input is 2, right? My input is 5. My input is 10. My input is 100. My input is 1000. All these cases we are trying to check, right? So when I'm giving my input, as 2 values for this addition, right? I'm taking 5 minutes. When I'm giving my input for the 5 values, still I'm taking 5 seconds. Okay. Again, I'm giving my input for 10 values, I'm taking 5 seconds. I'm giving 100 values, still my program is executing in 5 seconds. I'm giving 1000 values to add, still my program is getting executed in 5 seconds. What is happening over here? Here, if we observe, here one constant time has been taken in consideration. One constant time has been taken. हमारा इनपुट बढ़ भी रहा है तब भी हमें एग्जीक्यूशन के लिए टाइम कितना लग रहा है, सेम ही लग रहा है. So that's why such type of time complexity we will call it as a constant time complexity, and we represent it as a order of 1. Right? Similarly, we have a linear time complexity. Let's take an example. If we have certain values, suppose I am given 2 values, I am taking 5 seconds. I am given 5 values, I am taking 10 seconds. I am giving 10 values, I am taking 20 seconds. I am given 100 values, I am taking again 50 seconds. I am giving again 1000 values, I am taking few more values, right? What is happening? Again, the time complexity, if you observe, if we try to plot a line over here, right? If we try to plot a line over here, what is happening? As the number of inputs are increasing, what is happening? Our time for execution is increasing. This can be the linear increment, right? So such type of time complexity can be represented as order of n, right? Similarly, if it is taking double time, it will go to the order of n, right? If it is taking half of the time, then it will go to the log n. So like this, these different types of time complexities has been identified for the execution. So that's why this is order of 1 is a constant time complexity. Log n is called as a logarithmic time complexity. N is called as a linear time complexity. Then n square is called as a quadratic time complexity. 2 to the power n, this is an exponential time complexity, and n factorial is called as a factorial time complexity. You can observe even for minimum amount of input, very high time is required for the execution, right? So as the time is increasing, you can see the time complexity is increasing, right? So out of all these, this is the minimum. Order of 1 is the best time complexity, and this is the order how it is keep on go on increasing, right? So all such important pointers you should remember from the examination pointer. There can be small questions which can be framed for such type of time complexities, right? So you need to read about time complexity, space complexity, what is best case, average case, worst case, and what are the different types of time complexities for the algorithms and the programs, right? It can be calculated for algorithms also, it can be calculated for the programs also. Okay, so
So by using these techniques, we can implement various computational problems where we can use multiple techniques like sorting, searching, shortest path in graph, minimum spanning tree, traveling salesman, so many techniques that we can utilize, right? Now we will see what is the role of data structure over here. We understand the concept of algorithm. Now what is the role of a data structure? Purpose of data structure is to organize, to manage, to store, right? But when we are retrieving it, it should be efficient access, right? Even if we modify and retrieve it, there should be the efficiency, right? So that's why data structures matters a lot when we implement the algorithm. We have a variety of different type of data structures, right? Initially, when we work or implement any program, we have primitive and non-primitive. Generally, we prefer primitive data structures which is applicable as per the programming language. For example, if we take an example of a Java, int, float, double, right? All these are the primitive data structures, right? But when we talk about linear data structure, generally we work with arrays, right? In C, C++, you work with structures. All those are the non-primitive data structures. When we talk about non-primitive data structure, from here only actual our journey for data structure starts, because it is broadly classified into two categories. One is linear data structure and the second one is the non-linear data structure, right? Let's focus on the linear data structure. When we are talking about the linear data structure, there are again two. Some are predefined. पहले ही आपको साइज बताना पड़ेगा कि कितना साइज आपका डेटा में मैनेज करना है. So whenever you have predefined the size, that is called as a static data structure, right? And at runtime, when you are executing the program, as per the input, you will take a call. That is called as a dynamic data structure. So there are certain data structures which can be implemented in static as well as in dynamic, right? Here, first important point is it is linear in nature, means sequence में होना चाहिए, right? Second important point, if you are predefining, then you are implementing it in a static format. If you are implementing at runtime, you are taking a call at runtime, then you are defining it as a dynamic data structure. जितने input values हैं उतनों के लिए define करेंगे, right? In this way. Generally, we always prefer to define arrays as a static data structure, but nowadays we have an option for ADTs, that is abstract data structure. So with the help of that, there are certain data structures like array list, right? We can implement array using dynamically also, right? So nowadays programming language have a section called as collections, which makes us available lot of abstract data structures. Again, I am giving a hint for some of the important questions which are related to the abstract data structures. There will be some basic questions generally in exams for the abstract data structures also. Okay, so you can implement some data structures dynamically using the abstract data structures. Now here if you observe, then arrays, queues, stack and linked lists, these are defined as a linear because they follow the sequence, right? Because they follow the sequence. Then it is very clear that when we are talking about the non-linear, then trees and graph, these are not following the sequence. That's why they are called as a non-linear data structure. There is a one simple smaller difference over here. Whenever we implement tree, there is a hierarchy that is always in consideration. Whenever we implement graph, there is no hierarchy followed. So in any order, you can create the graph, right? So based on that, different classification for the data structure has been mentioned. I'll show you the sample. This is the array, right? You can implement one-dimensional, two-dimensional, multi-dimensional array. Linked list can be defined in this way. It is a linear data structure. One node is connected to another, right? You can see this. This is a tree. If you observe over here, this is actually the layers, right? This is level 1, right? This is level 2. This is level 3. This is level 4. So all these are the different levels. That's why we say that in trees hierarchy has been maintained, right? If we see the graph has no hierarchy. They can be designed in any random order. One more important point, you can see this is very close knit, right? You can see the graph. In this graph, you can form a cycle. If you start visiting this node, 1 say 2, 2 say 3, and again we can come back to 1, right? 1 say 2, 2 say 3, 3 say 4, and again we can come back.
So it means that there can be the cycle in the graph, but not in case of the trees. In trees, we cannot have the cycle. Getting the point, right? So this is the major difference between trees and graph. And you can very clear cut see that these are non-linear because of their arrangements, right? This is linear because iske baad ye aa raha hai, iske baad ye aa raha hai. If we talk about stack, yes, this is like a array only. First element over here, second element over here, third element. They are going in a linear order in sequence, right? So this is the stack. Similarly, we have hashing technique also. Specifically, hashing is used for search operation. The best search operation has been performed by the hashing technique. And it takes minimum amount of time to search any particular element. That's why this is the best searching technique. Now, there are different ways also to implement this. First, I will show you some of the examples which you can relate with the real time, right? I'll show you this example, right? आपको शायद नजर आ रहे होंगे लड्डूस, right? But I am able to see different types of data structures in all these diagrams, right? If you observe, right? Observe it carefully. These are in sequence, right? Here you can see the arrangement something like this, right? Can I say that there are rows and column, 2 rows are there and 5 columns are there? It means that it is representing two-dimensional, right? You are keeping all the letters one above another. What is this? This is nothing but the stack. You can see the stack over here also, right? You can see the stack over here also. This is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, like this also. Can you say this is a linear linked list? Yes, one node is connected to another. Or you can call it as a queue also. First, second, third, this is also a queue. That can be possible. This can be a circular queue. So all different type of data structures can be just represent around us. You can see the tree. This is a root node. This is a left child. This is a right child. Again, this is a internal node. This is left child. This is right child. So like this, if you observe it carefully, everything you can connect with the data structures, right? Even you can see in your home also, everywhere, all the linear structure is considered as a linear data structure. You can call it as a queue, you can call it as a one-dimensional array, or this entire structure, call it as a two-dimensional array. I'm just giving you the awareness. Everywhere data structures are present, only we need to identify them very correctly. And according to their purpose, we should use it. I'll show you some more examples, right? We always play this game. This is a solitaire game, right? So in this game, what we do? We just keep on doing the arrangement. Arrangement is what? Ascending order. Don't you think it is a sorting of the elements, right? Four different types of cards we are arranging in the ascending order. So this is some of the example of the sorting techniques only, right? If you see the bookshelf at your home, right? This is also a 2D matrix where you are according to the color, according to the size, you are arranging the books, different types of books very nicely, right? So all these are the examples. You can see the stack of books, stack of biscuits, stack of coins, stack of plates. All these are nothing but the stack examples. You must have seen the queues in ATM, petrol pump. All these are the examples of the queue, right? So if you just see around yourself, you will come to know there are everywhere data structure is existing, right? When you keep your books also, a pile is just getting generated. So at that time, there is some stack is getting generated, right? Hierarchy, you go to your college, you go to your office, at that time, there is some hierarchy, right? This is nothing but the hierarchical structure which represents some sort of tree, right? Again, whenever you go from one place to another, you see the different maps. All those are nothing but the examples of the graph, right? Every graph, you identify the shortest path. यहाँ से जल्द कम से कम time में मैं कैसे इस source से वहाँ destination तक पहुँचूँ. We use the Google Maps, right? GPS system. All those are the different algorithms along with the different data structures. So that is the role where computer science is playing very important role to identify different new algorithms or better algorithms to solve the real-time problems.
Okay, so this is how we are correlated with the different data sets. Now I'm entering into the different type of data structures one by one. So let's start with an arrays, right? Arrays is a very simple concept. But can you see the array anywhere in these three pictures? If you see the technical point of view, yes, this is some voice. Voice has been represented over here. Someone is speaking and some amplitudes has been reflected. Now, what is happening over here? Whatever the amplitudes has been reflected, if I try to convert this analog signal into digital signal, what will happen? I'll get numerous number of digits, some numbers I'm getting. And if I send all those numbers in one dimensional array, yes, I'm able to convert this audio signal into one dimensional array. That is what the practical application, and from that we can convert, we can identify at what pitch various operations or applications we can work with that, right? If you observe the text, some text, one document is given, right? We can convert this document into two-dimensional array. How? In every line, there are some words. And in this document, definitely certain words are there which are repeated again and again, right? Some names are repeated, some verbs are repeated, some articles are repeated. So what we can do? We can put all the words, unique words in the column, and in every page, every line, how many times it is repeated, we can count the frequency. And in this way, we can create the data set for the text document, which is in two-dimensional array. And then you can perform the different types of NLP operations on this data set, right? So in this way, arrays has been used. I would like to give one more example for this rows also, right? Someone must be saying ki where array we can see, right? But every image can be converted into two-dimensional array. That is its importance, right? In today's date, we deal with lot of images, right? Everywhere in your WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, everywhere lot of images are getting circulated, right? So for this rose image also, we have some sort of array representation, right? If we want to convert it into a black and white image, we have parameters. According to the intensity, black and white colors we can represent, and intensity we can write. But if we want to add that color also, that is also possible. Then instead of two-dimensional array, we can convert it into three-dimensional array by adding a third dimension of the color. Every color has an intensity from 0 to 255. So within that intensity has been cached, and color as well as your intensity for black and white image, that has been combined, and we can convert this entire colored rows into three-dimensional array. So I am giving you all these simple and difficult applications. Why? Because you should understand whatever the basic that we are going to learn, that has to be converted into IT in some application. That's why one simple array can be used in different ways that I am trying to tell you over here, right? Let's come back to our simple concepts, right? Whenever array is most important data structure. But remember three important keywords. It is an finite, it is an ordered, and it is a collection of homogeneous data. Homogeneous मतलब क्या? Similar type of. अगर आप integer store कर रहे हो, keep it integers. If you are storing some float values, decimal values, only it will store decimal. If you are storing only character, only add character. If you are storing some names, only names, right? So that is the homogeneous. So three keywords are very important when you define, when you understand, or any MCQ you are solving. Finite ordered collection of homogeneous data element, right? This is the structure. Whenever we try to implement any array, we should understand the logical understanding about the array. You can observe this, all these are called as an index. ये जो भी लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, all those are nothing but the index of an array. A, R, R, A, Y, जो letters लिखे हैं, those are actually the values of the array. मतलब 0th इंडेक्स के ऊपर A लेटर स्टोर है, 1th इंडेक्स के ऊपर R लेटर स्टोर है, 4th इंडेक्स के ऊपर Y लेटर स्टोर, राइट?
आप किसी भी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेजेस में यूज करो, बट कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहता है। ऑल दीज आर द इंडेक्स, एवरी इंडेक्स वन एलिमेंट को ही स्टोर करेगा। आप चाहो इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करो, डेसिमल वैल्यू स्टोर करो, या फिर अपने कैरेक्टर स्टोर करो, राइट? एवरी index is located in the memory. This is, if you observe over here in the right side, this is what, this is actually nothing but this is a memory, right? मेमोरी में इस तरीके से कुछ हॉरिजेंटल लोकेशंस होते हैं जिसे हम लोग मेमोरी ब्लॉक कहते हैं। वी कॉल इट एज अ मेमोरी ब्लॉक। एंड एवरी मेमोरी ब्लॉक देयर इज सम मेमोरी एड्रेस, कुछ एक मेमोरी एड्रेस होता है, राइट? तो इस मेमोरी एड्रेस में ये पर्टिकुलर एरे जहाँ पे अलोकेट हो रहा है, वहां से स्टोरेज स्टार्ट करें, राइट? सो इन दिस वे हमारा मशीन का जो मेमोरी है और जो प्रोग्राम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इनमें भी कोरिलेशन होता है, और इन दोनों का कम्युनिकेशन जो कराता है, दैट इज अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, वहां पे भी आएंगे। आफ्टर सम टाइम वी विल कम बैक टू ओएस एंड इन डिटेल्स ऑफ इट। लेट्स मूव अहेड। So I'll give you the some examples. Now you understand there is only index है and उसका value store करने के लिए locations है. This is the actual representation. This is a numerical. This is a character array. This is a numbers, right? With numbers we are storing. We will also call it as numbers as a array elements, right? So this is the representation. This is one dimensional. This is two dimensional, and this is three dimensional. Now let's understand कि इसमें ऐसा क्या difference आ रहा है. How it is different, right? First simple point, right? These are actually our array location. ये array elements है. All these are the array elements. इस हर एक array element के लिए हमारे पास क्या है? Index है. This is 0th index. This is 1, right? This is 3. This is 4 and this is 5. Every index के लिए हमारे पास क्या है? Memory location है. For every index, एज पर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका जितना भी मेमोरी साइज होगा, अब ये इंटीजर डेटा है तो 4 बाइट्स उसको स्टोरेज के लिए लगेगा। फॉर एवरी इंडेक्स, एवरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स का मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। इफ यू ऑब्जर्व 1000, 1004, 1004, 1008, then 1012 and so on. Always remember, whenever we start an array, indexing has to be start with 0. हमें सिर्फ इतना बताना होता है, वी डोंट बॉदर अबाउट द मेमोरी एड्रेसेस एंड द इंडेक्स। इंडेक्स के ऊपर और मेमोरी एड्रेस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? बट ऑलवेज रिमेंबर इट हैज टू स्टार्ट विद 0, राइट? इट हैज टू ऑलवेज स्टार्ट विद 0। 0 से ही स्टार्ट करना है। 1 से आप स्टार्ट करोगे तो उधर आप लोगों को लेंथ कैलकुलेट करते टाइम कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? सो दैट यू पार्ट यू नो। मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर है वन डायमेंशनल, सिमिलरली वी कैन हैव द टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में मतलब क्या हुआ है, राइट? एज आई हैव शोन दिस array elements, these are my array elements, right? But since it is a two dimensional, I can have the number of rows and the number of columns. I can have the number of rows and the number of columns. This is my first row, this is my second row, and this is my third row, right? एज पर द अरेंजमेंट, अब मेमोरी में स्टोर कैसे होगा, राइट? मेमोरी एलोकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेमोरी एलोकेशन। व्हेनेवर वी ट्राई टू सेव, फर्स्ट रो सेव होगा, अगेन हम लोग सेकेंड रो के पास आएंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट सारे सेव होंगे, देन थर्ड रो के पास आएंगे, थर्ड रो के एलिमेंट स्टोर होंगे। आइदर यू कैन सेव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे रो वाइज, राइट? इसे कहते हैं रो मेजर, right? It is called as row measure. Similarly, we can calculate or we can store it according to column also, right? So first column data we can save, again we come back to the second column, all second column elements we can save, we come back to the third column, all third column elements we can save, again we can come back to the fourth column, and fourth column all elements we can save. So where if we are storing with the columns, we will call it as a column measure. I hope you are getting this point. Here also some of the MCQ questions can be framed for horizontal row arrangement in the memory and for vertical. What are the names? Row measure and the column measure. Those are the representation for the storage of the memory. Okay. And if we talk about the 3 dimension, then
In this structure we have the different frames. You can see here green frame, yellow frame, blue frame. मतलब 3 डायमेंशन के लिए इनबिल्ट क्या रहेगा, 2 डायमेंशनल है. 2 डायमेंशनल के लिए इनबिल्ट क्या रहेगा, 1 डायमेंशनल है. इस तरीके से वी कैन डिजाइन द मल्टी डायमेंशनल एरे इन अवर स्ट्रक्चर. We can define the multi-dimensional array in our structure. It depends on our application, right? थोड़े कॉन्सेप्ट्स हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं, so that we must be little bit of aware about it, right? As I said, array is a linear data structure and it is static in nature. हम प्री-डिफाइन करते हैं. हम लोग बोलेंगे array A of 5 means 5 एलिमेंट्स को स्टोरेज के लिए एलिमेंट्स बनाना. Actually, what we are doing, we are specifying the size of the array. You can see over here array size. What is the syntax? You need to mention the data type and the array name and it's what type of array it is. Integer, float, character, right? That you need to specify. But here important point is that array size. Since we are mentioning beforehand what is the size of array, we are declaring the array that is the static in nature, right? अगर हम size पहले बता रहे हैं, we are defining static array in declaration, right? Let's say the example. You can see over here integer marks 5. Size पहले बता दिया. क्या हुआ, 5 integers वाला array generate. आपको character and array define करना, हाँ आप यहाँ पे char बता दो, right? This is your data type. This is the name of the array vowels. एंड साइज आपने बता दिया है 5 AEIOU. सो व्हाट इज हैपनिंग, 5 साइज का एक एरे यहाँ पे डिफाइन होगा. सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे एज पर अवर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, राइट? एरेज को पहले वैल्यूज भी दिए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे AEIO आई हैव ऑलरेडी इनिशियलाइज. In case 1 integer marks 5, I have not initialized, but in vowels case I have initialized it, right? So initialization we can do. The process where we initialize the array, this is initialization and this part is called as declaration. हमने क्या किया, array कितना साइज बनाना है और उसमें क्या वैल्यूज देना है, दोनों चीजें एक साथ कर दिया. So that is called as initialization and declaration, right? Here also we have defined the size of 5. Here we have defined the size of 3 elements. Here in second case we have defined the size of 5 and we have mentioned only 2 elements. मतलब size कितना लिया है 5 का, store कितना किया है only 2 elements. मतलब बचे हुए elements का क्या हुआ, by default it will be set to the value 0. By default it will set to the value 0. Size कितना रहेगा 5 ही रहेगा. आप चाहे कम एलिमेंट्स दो तब भी 5 रहेगा, आप ज्यादा दोगे तब भी वो उसमें से 5 ही लेगा, राइट? सो दैट विल बी द केस. नाउ सपोज यू डिड नॉट स्पेसिफाई द साइज, देन व्हाट विल हैपन, whatever number of elements you will declare, that much will be the size of it, right? Whatever number of elements you will declare, that much will be the size of the elements. So in this way we have to initialize and declare the array, right? Now how to access the element, you can directly give the name of the array and specify the index. इसीलिए तो index का concept है, right? You can directly access any particular element with the help of index. You can set the value and you can get the value also. अगर कोई वैल्यू सेट करना है, जैसे मुझे मार्क्स 1 में 95 डिफाइन करना है, we are setting the value in index 1, right? I want to print that value, I just write marks 1. What we are printing, we are getting the value of marks 1 in the index 1 में जो value है we are retrieving it. So in this way we can access the different array. The process that we follow with 1 dimensional, similarly we can work with 2 dimensional also. Only difference क्या है, पहले सिर्फ एक रो का साइज देते थे, अभी रो एंड कॉलम का बताना पड़ेगा, right? First part whatever you are defining, that is your row part. Second part whatever you are defining, that is your column part. तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप एंटर करोगे उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जनरेट होते हुए जाएंगे. फॉर एग्जांपल इन दिस केस 1 2 3 मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे 3 कॉलम्स, 1 2 3 एलिमेंट्स है यानी 3 कॉलम्स है. एंड यहाँ पे 2 बार ये सेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 रोज.
So 1, 2, 3 will go here, 1, 2, 3, and 4, 5, 6 will go over here. So what is happening? 2 rows, 3 columns का एक matrix, 2-dimensional matrix can be generated. 2 rows, 3 columns का एक matrix, इसे हम लोग कहेंगे 2x3 का matrix. It can be generated in this way. हमने क्या किया? Initialize भी कर लिया, size भी बता दिया और declare भी कर दिया, right? Even you can do the constant declaration for array size also. That also we can do, right? You can fix the size of array to the 10. You can declare it as a constant with size value 10. So what is happening? आप कुछ कितना भी values दो, you cannot give more than 10. Below 10 if you are giving, the remaining values will be set to the 0. So in this way, different type of array applications, array implementations can be utilized. इसके ऊपर छोटे छोटे स्निपेट्स है, कोई कोडिंग क्वेश्चंस है, वो फॉर्म किए जा सकते हैं. तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, वो आपको थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम के लिए, राइट? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब इसमें से जो जो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगता है, वो सारी चीजें आप प्रिपेयर करते हुए चलो, राइट? अभी एक मैंने बताया, अभी जितना भी डिस्कशन किया वो सब स्टैटिक एरे डिक्लेरेशन के लिए किया. नाउ सेकंड डिक्लेरेशन वी कैन चेक इट फॉर द डायनामिक एरे आल्सो. इन डायनामिक एरे वी हैव टू मेक यूज ऑफ पॉइंटर्स, राइट? C++ में तो पॉइंटर्स के बिना बहुत सारा काम अधूरा है, राइट? सो वी कैन यूज पॉइंटर्स विद द एरे. जब भी हमें डायनामिक एरे डिफाइन करना है, वी कैन मेक यूज ऑफ पॉइंटर्स. हियर 2 important keywords are also there. Here 2 important keywords आते हैं, new and delete. ये C++ में बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे यूज किए जाते हैं, राइट? इफ यू ऑब्जर्व द डिक्लेरेशन, राइट, दिस इज व्हाट योर डेटा टाइप. इंटीजर है, फ्लोट है, आपको बताना है, पॉइंटर वेरिएबल देना है, देन यू स्पेसिफाई द नेम, राइट? ऑब्जर्व केयरफुली, you need to specify the new keyword, and then after that you need to specify the data type and the size. Size again we are giving, right? Again we are giving the size, but this declaration is called as dynamic. क्योंकि ये क्या कर रहा है, रन टाइम पे डिसाइड करेगा. अरे में 2 एलिमेंट सेव करना है, 2 के लिए साइज बनाएगा. 10 एलिमेंट सेव करना है, 10 के लिए साइज डिक्लेयर करेगा, राइट? ये जो न्यू कीवर्ड है, द काम इस न्यू कीवर्ड का यही है, रन टाइम पे मेमोरी अलोकेट करते जाओ. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके हिसाब से मेमोरी अलोकेशन करना, राइट? सो दैट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ न्यू कीवर्ड, राइट? सो दैट्स व्हाई न्यू कीवर्ड को कैसे यूज करना है, डायनामिक अलोकेशन के टाइम में करना है. You can see the example, integer dynamic array we are declaring. This is the data type. We are giving this pointer variable, right? Again we are to allocate the memory, we are defining the new keyword and we are specifying 5, right? So even dynamically allocation array, it is 5 integers के लिए वो allocate कर देगा run time पे, right? अगर assign करना है, yes, you can insert the values also, you can access the values also, and you can release the memory also, right? अभी हमने क्या किया, सिर्फ array declare किया है. अब मुझे क्या करना है, array में elements को डालना है. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक, राइट? यू कैन इम्प्लीमेंट वन फॉर लूप. एक फॉर लूप लगा दो और उसमें वैल्यूज एंटर करो. 1 2 3 4 देना है तो आई दे दो. मल्टीपल ऑफ 10 20 30 देना है तो वैसे कर लो. वट एवर वैल्यूज यू वांट टू इंसर्ट, यू कैन स्पेसिफाई, राइट? बट लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक लूप चलेगा. So that's why condition I is equal to 0, 0th index हमारा पहला इंडेक्स है, and I is less than 5, 5 हमारा लास्ट इंडेक्स है. तो all elements, all array elements में वैल्यूज हम लोग इंसर्ट कर सकते. प्रिंट करवाना है, क्या करोगे, फिर से एक फॉर लूप चला दो. प्रिंटिंग कहाँ से होगा, फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक होगा. प्रिंटिंग कैसे कराएंगे, आप इंडेक्स को प्रिंट करा दो, जिसका भी वैल्यू है उसको सी आउट स्टेटमेंट के साथ जोड़ दो. You are able to print the values, right? अब मेरा सारा काम हो गया है. Whatever the memory that we have consumed in the program, we want to release, right? If we want to release, then in that case we can make use of a delete array, right? You can use the delete array. ये क्या करेगा, जितना भी मेमोरी इस न्यू ने अलोकेट किया था वो सारा मेमोरी वो रिलीज कर देगा. So in this way we can perform the different types of operations by using the arrays, right? So in this way we can do.
I'll quickly give you the little bit ideas. Now searching, sorting, ये सारे applications array में चलते हैं. सर्चिंग में लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च होता है. एक एरे दिया है, आपको 37 ढूंढना है. क्या करोगे? देखोगे इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या. यस, गॉट इट. बस सिक्वेंशियली आप हर एक एलिमेंट को सर्च करते हुए जा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सर्च एन एरे. लॉजिक क्या है? हमको सर्च करना है सिक्वेंशियली, राइट. आई विल हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट. फोकस करो, ये मेरा लीनियर सर्च का फंक्शन है जिसमें मुझे फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक सर्च करते हुए जाना है. क्या चेक करना है? आई जस्ट वांटेड टू चेक जो वैल्यू 37 मुझे सर्च करना है, क्या वो उस इंडेक्स में है क्या. सो वी आर चेकिंग द इफ कंडीशन. अगर मिल गया तो हम बताएंगे हाँ मुझे मिल गया है. अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे -1. दैट इज ओनली द लॉजिक, राइट. इसमें याद क्या करना है? लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च आर इम्पोर्टेंट, राइट. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज याद रखना. यू नीड टू वर्क और रिमेंबर ऑन दिस पार्ट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या है, बेस्ट केस में. फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स चेक किया और वही एलिमेंट मिल गया, दैट इज द बेस्ट केस. सारे इंडेक्स चेक कर लिए, लास्ट में जाके वो एलिमेंट, दैट इज द वर्स्ट केस. सो इन दिस वे वर्स्ट केस एंड द बेस्ट केस हम लोग चेक करते हैं, राइट. सो दिस इज द केस विद द लीनियर, राइट. आई क्विकली लिटिल बिट आई विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप, दैट इज अ बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च का फंडा थोड़ा डिफरेंट. एरे है लेकिन इसका एक प्री रिक्विजिट. प्री रिक्विजिट मतलब जरूरी चीज. क्या जरूरी चीज? एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, राइट. आप जो 0 से 8, यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स इस एरे में दिए हैं, ये कैसे होने चाहिए? ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए. हम क्या कर रहे हैं? हम सर्च कर रहे हैं, राइट. लेकिन ये बाइनरी सर्च का रिक्वायरमेंट क्या है कि एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तभी ये लॉजिकली काम करता है. चलो अभी हमें 37 को आइडेंटिफाई करना है. लॉजिक पे हम क्या करेंगे? एक पॉइंटर उठाएंगे. वी विल टेक वन पॉइंटर, राइट. एक पॉइंटर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में डालेंगे, जिसे हम लोग बुला रहे हैं फर्स्ट. आप इसे लो बुलाओ तो भी चलेगा, राइट. एक पॉइंटर हम लास्ट इंडेक्स में डाल रहे हैं, जिसका नाम है, हम लोगों ने हाई दिया. करना क्या है? आपको ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को जोड़कर 2 से डिवाइड कर. इससे क्या होगा? हमें मिड ऑफ द एरे मिल जाएगा. मिड पॉइंट ऑफ द एरे हमें मिल जाएगा, जिसे हम लोग मिडल नाम से रिप्रेजेंट. तो 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद हमको इंडेक्स मिलता है 4, राइट. अभी मेरा इंडेक्स जो है 45. प्लीज प्रवीण, डोंट स्क्रैच ऑन द स्क्रीन, राइट. आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. सो मिडल पार्ट में हमें मिल रहा है 45. मुझे करना क्या है? द की वैल्यू आई वांट टू सर्च इज 37 एंड 45 में जो मिडल में वैल्यू मिल रहा है 45, उन दोनों में से ये वैल्यू 37 छोटा है या बड़ा है, मुझे चेक करना है. अगर ये वैल्यू छोटा है, की वैल्यू, सर्च वैल्यू अगर छोटा है, हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स में चेक करेंगे. 45 से वैल्यू अगर छोटा है, हम सिर्फ लेफ्ट साइड के वैल्यूज में चेक करेंगे. अगर ये वैल्यू 45 से बड़ा है, तब हम ग्रेटर साइड में 45 के अबव साइड में चेक करेंगे, राइट. अब देखो, अगर हम लोग सिर्फ इतने 0 to 3 चेक करेंगे, मतलब आधे एलिमेंट्स तो बच गए ना. आधे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, काम कम हो गया है. दैट्स व्हाई दिस बाइनरी सर्च इज वेरी एफिशिएंट, राइट. और अब ये प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे. अभी फिर हम इसको फर्स्ट बुलाएंगे, फर्स्ट इंडेक्स, राइट. दिस विल बी आवर फर्स्ट इंडेक्स, राइट, एंड दिस विल बी आवर लास्ट इंडेक्स. इन दोनों का मिड निकालेंगे. 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2, हम लोग कहाँ आएंगे? 1.5, राइट. हम लोग आएंगे मिडल पॉइंट यहाँ पे. लेकिन 35 जो है वो 37 से छोटा है. हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू इटरेट द लूप 1 more टाइम. वी नीड टू इटरेट. लेकिन कहाँ चेक करेंगे? राइट साइड में चेक करेंगे. मतलब 2 एलिमेंट्स मिल गए. फिर से ये फर्स्ट एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट, दोनों का मिड निकालो, हमें 37 मिलेगा. और अब की बार 37 मैच होगा एंड वी विल से दैट वी फाउंड द एलिमेंट. अब ये जो प्रोसेस है हाफ डिवाइड करना, यही हमारा बाइनरी सर्च का टेक्निक है, राइट. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि आप सर्च करते टाइम मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करो, राइट. अगर वो एलिमेंट मिल जाता है, यस वी कैन से दैट फाउंड.
अगर वो एलिमेंट इसमें नहीं रहा तो जब आपका इंडेक्स क्रॉस हो जाता है, राइट, 3 and 2 जब क्रॉस हो जाएंगे, दैट टाइम वी नीड टू स्टॉप, राइट। जब आपकी वैल्यूज इस अगर कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है तो यू नीड टू सी दैट लो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द हाई। ये वाला कंडीशन जब आएगा आप समझ जाना कि यहाँ पे मिडल एलिमेंट अवेलेबल नहीं, राइट। सो इन दिस वे वी नीड टू चेक बाइनरी सर्च। ये एक एलिमेंट, इसके लिए एलिमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही होना चाहिए, राइट। आप रैंडमली चेक नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू दैट। अदरवाइज सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनरी सर्च जो वो लॉजिक बिल्ड कर रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट एंड हाफ में जाओ, दैट विल बी गेटिंग लॉस्ट। अगर आप लीनियर में भी डायनामिक करोगे फिर भी पॉइंट नहीं है। किस बेसिस पे चेक करोगे, क्योंकि वहां पे कोई सॉर्टेड ऑर्डर भी नहीं है, तो लीनियर में भी रैंडम चेकिंग नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ओके, सो इन दिस वे वी नीड टू चेक। अगेन इसका भी एक कोड है, कंडीशन है कि हम जब तक हमारा लो वैल्यू हाई से बड़ा नहीं होता है तब तक आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करो और मिड का वैल्यू और सर्च एलिमेंट को कंपेयर करो। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो अगर एलिमेंट छोटा है तो लेफ्ट साइड में कंपेयर करो, नहीं तो राइट साइड में कंपेयर करो। सो इन दिस वे वी राइट द लॉजिक। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद है, लॉजिक एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च, राइट। दोनों का कंपैरिजन, दोनों में क्या डिफरेंस है। बाइनरी सर्च इज क्वाइट फास्टर, मैंने कहा आधा पार्ट में काम नहीं करना पड़ता है, राइट, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को इजीली हैंडल करता है। बाइनरी सर्च इज ऑलवेज बेटर देन द लीनियर, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ज्यादा बड़े हैं तो ज्यादा टाइम लगता है। जैसे सर्चिंग एक एप्लीकेशन है वैसे ही सॉर्टिंग भी है। सॉर्टिंग में बहुत सारे टेक्निक्स हैं, राइट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, राइट, सो मेनी आर देयर। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखोगे, इंटरनल सॉर्टिंग, एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होता है। दी हुई मेमोरी में जब सॉर्टिंग हो जाता है उसे कहते हैं इंटरनल सॉर्टिंग, एंड व्हाइल सॉर्टिंग इफ यू नीड एडिशनल मेमोरी इट इज कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सॉर्टिंग के टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे सॉर्ट मेजॉरिटीली कंपैरिजन बेसिस पे होते हैं, बट देयर आर सम सॉर्ट व्हिच आर नॉट ऑन द कंपैरिजन बेसिस आल्सो। तो उनके एग्जांपल्स याद रखो, जैसे मैंने काउंटिंग सॉर्ट एंड रेडिंग सॉर्ट का एग्जांपल नोट करके बताया। ये एग्जांपल्स याद रखो क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ऐसे कोई भी एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं। स्टेबल नॉट स्टेबल सॉर्टिंग, ये भी एक टेक्निक है सॉर्टिंग। कभी कभी क्या होता है, सेम नंबर विल बी डुप्लीकेटेड इन द एरे, एरे में एक ही नंबर दो बार आता है। अब यहाँ पे अगर आप इस केस में देखो 26A, आई विल लेबल इट, ओके, 26A एंड 26B, राइट। तो एक मेरा ये वाला 26 है जिसे मैंने येलो कलर से डिफाइन किया है, और दूसरा जो 26 है मैं उसको पिंक कलर से डिफाइन कर रही हूँ, राइट। सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद अगर 20 येलो वाला 26 पहले आता है और पिंक वाला 26 बाद में आता है, इफ दिस इज हैपनिंग इट मीन्स दैट दिस इज अ स्टेबल सॉर्ट। मतलब जिस ऑर्डर में जो नंबर आया था उसने अपना ऑर्डर चेंज नहीं किया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल सॉर्टिंग। वही आप सेकेंड वाला केस देख लो, जो पीछे वाला 26 था वो क्या हो गया है, पहले आ गया है, मतलब उन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, पीछे वाला 26 आगे आ गया है। जब भी ऐसा ऑर्डर चेंज हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं नॉट स्टेबल सॉर्टिंग। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स व्हेन प्रिपेयरिंग द क्विज। बाकी तो फिर टेक्निक्स हैं, जनरली कंपैरिजन होते हैं। एक एग्जांपल, जैसे कि ये कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, हर दो नंबर को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो हम लोग लास्ट पोजीशन पे लेके आएंगे। दिस इज द टेक्निक ऑफ द बबल सॉर्ट। हर दो नंबर्स जैसे 5 and 3 कंपेयर किया, राइट, तो 5 इज ग्रेटर, इंटरचेंज किया। 5 and 8 को कंपेयर किया, 8 इज ग्रेटर, तो इंटरचेंज नहीं करने का क्योंकि 8 इज ऑलरेडी एट इज पोजीशन। 8 and 4 को कंपेयर किया, अगेन 4 इज स्मॉलर, 8 को एक्सचेंज किया, स्वैप फंक्शन यूज करते हैं। 8 and 6 को कंपेयर किया, 8 इज ग्रेटर। ऐसे करते करते क्या हुआ, 8 जो है वो लास्ट पोजीशन पे आ गया। दिस इज द हाईएस्ट नंबर इन द गिवन एरे, राइट। जो सबसे बड़ा नंबर है वो एंड में आ रहा है, दिस इज अवर एरे इवैल्यूएशन, राइट।
तो बबल सॉर्ट का यही टेक्निक है। ये सिर्फ वन पास हुआ है, अभी एरे सॉर्टेड नहीं है। अब सेकेंड पास, फिर सेकेंड नंबर सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आएगा, फिर पास 3 होगा जिसमें थर्ड एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे आएगा, राइट। तो ये है हमारा कंपैरिजन का टेक्निक। अगर आप इसमें आप ऑब्जर्व करो तो इन दैट केस यहाँ पे ये आपको मिलता है कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट। अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस सबसे ज्यादा टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट। इसमें एग्जीक्यूशन में जितने भी एरेज है उसमें एन स्क्वायर टाइम स्पेंड लगेगा, राइट। आप देखो यहाँ पे 2 फॉर लूप चल रहे हैं तो डेफिनेटली एन स्क्वायर ऑर्डर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, राइट। इसका एक बेटर वर्जन है जिसे हम लोग ऑप्टिमाइज वर्जन के नाम से जानते हैं। वहां पे 2 फॉर लूप में से एक फॉर लूप हम लोग बचा सकते हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट बेस्ट केस में उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन में आता है। छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए याद रखना, राइट। अगेन आई विल गिव यू द ओवरव्यू। ऐसे चार्ट्स बना लो अपने स्टडी करते टाइम एंड हर सॉर्ट में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको याद रखो। स्टेबल है, अनस्टेबल है, राइट। इंटरनल सॉर्टिंग है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग, उसका एक चार्ट बना के अपने स्टडी में रखो ताकि आप क्विकली उसे रिवाइज कर पाओ, राइट। लेट्स सी द अनदर टेक्निक, हीप एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। इसमें अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरेंजमेंट यानी क्या है, इसमें एक रूट नोड होता है, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है और एक राइट चाइल्ड होता है। इसी अरेंजमेंट में सारे नोड्स कनेक्ट होते हुए जाते हैं, इसी ऑर्डर में सारे नोड्स कनेक्ट होते हुए जाते हैं, राइट। इसीलिए इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हीप इज ऑलवेज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड होता है। हमेशा कंप्लीट बाइनरी ट्री का एक प्रॉपर्टी है जो हमें बताता है कि हमेशा लेफ्ट चाइल्ड पहले आना चाहिए राइट चाइल्ड से, राइट, एंड इट फॉलोज दैट। इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीप, राइट। एक को कहते हैं मैक्स हीप, दूसरे को कहते हैं मिन हीप। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव हियर ओनली। अगर मैं कोई हीप डिजाइन कर रही हूँ, I have a value 6 over here, 3 over here, and I have value some 4 over here, right? अभी ये जो हीप बन रहा है, ये लेफ्ट चाइल्ड बना, ये राइट चाइल्ड बना, ये रूट नोड बना, राइट। आउट ऑफ ऑल दिस पेरेंट, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड में से सबसे बड़ा वैल्यू अगर रूट नोड में है उसे कहेंगे मैक्स। वही अगर इन वैल्यूज में, राइट, अगर इन वैल्यूज में सबसे छोटा पेरेंट, चाइल्ड एंड लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, इन तीनों में से सबसे छोटा वैल्यू अगर रूट नोड में रहा उसे कहेंगे मीन। इसी वजह से 2 टाइप्स की हीप डिजाइन किए जा सकते। एवरी टाइम ये बैलेंसिंग हमें करना बहुत जरूरी है, राइट। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड के साथ एसोसिएटेड। इसमें इंसर्शन, डिलीशन, हिपिफाई एंड बिल्ड हीप, ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। हिपिफाई फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैलेंस करता है। बैलेंस मतलब कैसे? बैलेंस का मतलब है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास अगर कुछ ये वैल्यूज है, राइट, ये क्या करेगा, पहले 6 को इंसर्ट करेगा, फिर वो 5 को लेफ्ट चाइल्ड में जोड़ेगा, फिर उसके बाद वो 3 को राइट चाइल्ड में जोड़ेगा, देन आफ्टर दैट वो चेक करेगा क्या ये बैलेंस है, यस इट इज अ मैक्स है, देन वो 1 को इंसर्ट करेगा। 1 को इंसर्ट करने के बाद उसने 8 को इंसर्ट किया, अगेन वो चेक करेगा क्या ये बैलेंस है, राइट। तो मैक्स हीप है तो 8 एंड 5 को उसने क्या किया, स्वैप फंक्शन किया। 8 एंड 6 को भी हर लेवल पे उसे ये बैलेंसिंग करना पड़ता है, यही हिपिफाई फंक्शन का काम है। नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया, अगेन 7 इज ग्रेटर, राइट, तो उसने स्वैपिंग किया, बैलेंस किया। अगेन 2 इंसर्ट किया, नो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, अगेन 4 को इंसर्ट किया। 1 एंड 4 में स्वैपिंग का कॉल देना पड़ेगा, तभी जाके ये परफेक्टली मैक्स हीप हर लेवल पे बनेगा, राइट। तो इन दिस वे जब भी हम लोग मैक्स हीप बनाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट रूट नोड। मिन हीप रहेगा तो छोटा वैल्यू रहेगा। डिलीशन के लिए भी ऐसा है, रूट नोड को डिलीट करो, लास्ट एलिमेंट से रिप्लेस करो एंड बैलेंस करो। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, हिपिफाई आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता है, राइट। सो इसी के बेसिस के ऊपर हमारा हीप सॉर्ट चलता है, डिलीशन करते जाओ और एलिमेंट्स को अरेंज करते जाओ, राइट। इसमें आपको याद रखना है ये वाला पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इंसर्ट, डिलीट, हिपिफाई फंक्शन
इन सब के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो log of n होता है, राइट। बिल्ड हीप के लिए ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हीप में डालना होता है, एंड हीप सॉर्ट का n नंबर ऑफ टाइम्स हीपिफाई कॉल होता है, इसीलिए n इंटू लॉग n, दैट्स वाई टोटल n log n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज स्टैक। स्टैक जो है ये बहुत ही इजी गोइंग डेटा स्ट्रक्चर है, एरे इंप्लीमेंटेशन से भी होता है और लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन से भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंसर्शन डिलीशन फ्रॉम वन एंड, इसे कहते हैं लीको, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एंटर होगा वहीं से वो डिलीट कर पाएगा, राइट। इसमें इंसर्शन ऑपरेशन को हम लोग पुश कहते हैं, डिलीशन को हम लोग पॉप कहते हैं। टॉप मोस्ट एलिमेंट को हमेशा पीक या फिर टॉप नाम से जाना जाता है। अगर स्टैक का साइज फुल हो गया, वी कैन नॉट डू द इंसर्शन, उस कंडीशन को हम ओवरफ्लो कहते हैं। स्टैक का साइज अगर एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एंड वी आर ट्राइंग टू डिलीट एनी एलिमेंट, देन इन दैट केस वी विल कॉल इट एज अ अंडरफ्लो कंडीशन, राइट। तो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशंस में जनरली हम लोग फंक्शंस कॉल होते हैं, राइट, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशंस होते हैं, अनडू फीचर्स होते हैं, राइट, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, इन सब चीजों में स्टैक यूज होता है, राइट। ऐसे कोई भी एप्लीकेटिव क्वेश्चन जैसे 1 इंसर्ट हुआ, 2 इंसर्ट हुआ, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द टॉप, राइट, लाइक दैट एनी एमसीक्यू क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, इज एम्प्टी, पीक, ये सारे फंक्शंस आपको देखना चाहिए, राइट। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए, एट अ टाइम 1 एलिमेंट ही इंसर्ट होता है, एट अ टाइम 1 एलिमेंट ही डिलीट होता है। टॉप पे भी एक टाइम में एक ही एलिमेंट होता है, राइट, एम्प्टी भी है तब भी हम एक ही बार चेक करते हैं। फॉर एवरी ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ दिस एवरी टाइम इट इज ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। कभी कभी इस तरीके से इमेज देखकर व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द स्टैक, ऐसे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो while preparing the stack you can prepare all these things. Let's move towards the queue data structure. ये भी एक बहुत सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। ये भी होमोजेनियस सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है। बट स्टैक में जैसे हमारे पास एक पॉइंटर था, क्यू में हमारे पास 2 पॉइंट। इंसर्शन के लिए एक पॉइंटर यूज करना है, डिलीशन के लिए अनदर पॉइंटर यूज करना है। इसमें इंसर्शन ऑपरेशन को एनक्यू कहा जाता है, राइट। जो एनक्यू ऑपरेशन है वो रेयर पॉइंटर के थ्रू होता है। जो डिलीशन ऑपरेशन है वो डीक्यू कहा जाता है, और वो फ्रंट नाम के पॉइंटर से होता है, राइट। आपका क्यू जब फुल होता है उसके कंडीशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं उसके कंडीशंस, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है क्यू इम्प्लीमेंटेशन, राइट। ये हमेशा फॉलो करेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में जो पहले एंट्री ले रहा है उसका काम सबसे पहले, राइट। सो इट फॉलोज द प्रिंसिपल कॉल्ड एज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें भी सारे ऑपरेशंस ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे होते हैं, क्योंकि एट ए टाइम एक ही एलिमेंट इंसर्ट होता है, एट ए टाइम एक ही एलिमेंट डिलीट होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें एक चीज है, एक जैसे हमारा ये सिंपल क्यू है, रेयर पॉइंटर से हम इंसर्शन करते जाते हैं, और फ्रंट पॉइंटर तभी आगे बढ़ता है जब यहाँ से डिलीशन होता है। इसमें एक ही ड्रॉबैक है, डिलीशन करने के बाद स्पेस होते हुए भी अगर रेयर लास्ट लोकेशन पे है, वी कैन नॉट इंसर्ट द मोर एलिमेंट, राइट। टू ओवरकम दिस वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्यू दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर क्यू। इसमें क्या किया है, सर्कुलर क्यू में हमारा जो लास्ट लोकेशन था, राइट, हमारा जो लास्ट लोकेशन था उसे हमने कनेक्ट कर दिया है फर्स्ट लोकेशन के साथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी यूज द मॉडरेटर ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर, एंड वी कैन बैलेंस द क्यू। अगर अब इसमें जगह आता है तो वी आर एबल टू एग्जीक्यूट इट, राइट। तो इस तरीके से बैलेंसिंग करके हमने एक नया फॉर्म ऑफ क्यू बना दिया जिसे हम लोग सर्कुलर क्यू के नाम से जानते हैं, राइट। इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्यूज है हमारे पास, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू, प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर डी क्यू। सो वैरायटी इज टू मच, बट आपको जो फोकस करना है, आपको सिंपल क्यू, उसका फीफो बिहेवियर, इंसर्शन, डिलीशन, एंड वो कहाँ काम नहीं करता, उसका ड्रॉबैक क्या है,
क्योंकि जब ड्रॉबैक पता होगा तभी आप सर्कुलर क्यू का यूटिलिटी समझ पाओगे। यहाँ पे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो दैट यू नीड टू रिमेम्बर, राइट। हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है ये बेसिकली जो लीनियर ऑर्डर है उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉलो कराया जाता है। जो जैसे हम एरेस में सीक्वेंशियल एलिमेंट सेव करते थे वैसे ही, बट अभी यहाँ पे ऑर्डर जो है वो एक लोकेशन या इंडेक्स पे नहीं होता है, एक नोड में डेटा सेव होता है। अब ये नोड में जब डेटा सेव करना है, हमें एक स्ट्रक्चर, एक स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं नोड। इस नोड में दो पार्ट होते हैं, दो सेगमेंट्स होते हैं। पहला पार्ट जिसे कहते हैं डेटा, जिसमें वो वैल्यू होता है जो उस पर्टिकुलर नोड में रिप्रेजेंट करना है, और सेकंड जिसे हम लोग कहते हैं लिंक, जिसमें होता है एड्रेस, जिसमें होता है एड्रेस। अगर हम इस नोड को डिफाइन करना चाहे, एक वन यूनिट ऑफ नोड, इट कैन बी टेकन इनटू टू सेक्शंस, डेटा एंड द लिंक। लिंक यानी क्या है? एड्रेस, पॉइंटर टू द नेक्स्ट लोकेशन। इसीलिए इसको डिफाइन करते हम लोग एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं नोड, जिसमें इंटीजर पार्ट यानी डेटा सेक्शन स्टोर होता है, और ये जो लिंक है जो एड्रेस स्टोर करता है, राइट, एड्रेस का जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर होता है, दैट हैज बीन गिवन बाय द नेक्स्ट। नाम आप कुछ भी दे दो चलेगा, बट एक नोड अगर बनाना है यू नीड टू डिफाइन दिस स्ट्रक्चर, right? Like this, we create multiple nodes and each node is connected to the next one. Next node is connected to next one. So every time we are saving the address of N2 into this link, N3 into this link. In this way, we are going to create the linked list. Linked list ऐसे ही बनता है। मतलब this is node 1, this is node 2, this is node 3, this is node 4. ये चारों नोड्स अलग अलग एड्रेसेस पे बनते हैं, राइट, डायनामिकली बनते हैं, रन टाइम पे बनते हैं, बट इन लोगों को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कनेक्ट इस नोड को इस नोड के साथ कनेक्ट करना। ये कनेक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हियर इस पॉइंटर में हम लोग इस नोड का जो वैल्यू है, इस नोड का वैल्यू जो है जिसे हम लोग बोलेंगे 2000, ये 2000 वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 23 नंबर का जो नोड है इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू द 54 एंड लिंक लिस्ट में अभी दो नोड जुड़ जाए। तीसरा नोड जो 78 है, इसे अगर मुझे 54 के साथ कनेक्ट करना है, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ नोड 3। 78 नोड का जो मेमोरी एड्रेस है उसे मैं यहाँ पे नोट करूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, this 54 is getting connected to the 78, right? Now I want to connect 90 to the 78. What I need to do, I need to save the memory address of 90 into this part, link। इस link पे, इस वैल्यू में, यहाँ पे मुझे इस पॉइंटर वैल्यू में मुझे स्टोर करना पड़ेगा 4000। अब क्या हुआ, 78 is getting connected to the 90 node। अब लिंक लिस्ट में मेरे पास कितना, 4 नोड हो गया है, राइट, इन 4 नोड्स के थ्रू लिंक लिस्ट जनरेट हो गया। व्हाट विल बी द वैल्यू इन द लास्ट नोड, लास्ट नोड में जो भी वैल्यू होता है उसे हम लोग बोलते हैं नल, क्योंकि अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, अगर ये नल रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब ये है कि दिस इज द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। ये क्या है, हमारा लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, राइट। तो लिंक लिस्ट अभी बन गया है, इसमें 23, 54, 78 एंड 90 ये 4 है। लास्ट नोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका जो लिंक पॉइंटर लिंक है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, नल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और अगर मुझे 23 को फर्स्ट नोड बनाना है, व्हाट वी विल डू, एक पॉइंटर बना देंगे हम लोग, एक पॉइंटर बना देंगे जिसका नाम आप स्टार्ट दे दो, होम दे दो, जो भी आपको अच्छा लगे, नेम यू कैन गिव एनीथिंग, राइट। इसको मैंने एक स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर, एक रेफरेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जो इंडिकेट करेगा दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय लिंक लिस्ट। इस स्टार्टिंग पॉइंट के थ्रू 23 to 54, 78, 90 इस तरीके से लिंक लिस्ट जुड़ता जाएगा। अब ये रैंडमली जो नोड रन टाइम पे क्रिएट होता जाएगा इस लिस्ट में जुड़ता जाएगा, एंड लिस्ट विल कीप ऑन ग्रोइंग।
दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस, रेफरेंसेस, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, राइट। जैसे कि अभी ये एक नोड, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट दिखाया है, जो भी लास्ट नोड का इंडिकेशन क्या है, नल पॉइंटर। फर्स्ट नोड का इंडिकेशन क्या है, आप एक पॉइंटर अटैच कर दो, स्टार्ट या हेड या कोई भी एक नाम उसको दे दो, चलेगा। मेमोरी में ये रैंडमली क्रिएट होंगे, बट ये जो एड्रेस आप यहाँ पे डाल रहे हो, इसके थ्रू आप कनेक्शन बिल्ड करते हुए जाते हो। दैट्स व्हाई लिस्ट इज गेटिंग क्रिएटेड। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये लिंक लिस्ट। यू कैन ऑलवेज लर्न इट इन अ बेटर वे, राइट। आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ सकते हो। अभी सिंपल तो हम लोगों ने अभी भी कॉन्सेप्ट देखा, इसमें 2-3 टाइप की लिंक लिस्ट आती है, जैसे सिंपल लिंक लिस्ट, डबल ई लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंपल लिंक लिस्ट जिसका एक ही पॉइंटर है और जो नेक्स्ट के साथ कनेक्टेड, राइट। जो डबल ई लिंक लिस्ट है उसके 2 पॉइंटर्स है, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस, मतलब दोनों नोड आगे पीछे 2 लिंक के साथ कनेक्टेड। सो 2 लिंक्स आर एग्जिस्टिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल ई लिंक। एक पहले का पीछे वाले के साथ और पीछे वाले का आगे वाले के साथ, तो 2 लिंक्स एग्जिस्ट करती है, दैट्स व्हाई इट इज अ डबल ई लिंक लिस्ट, राइट। तीसरा और एक कैटेगरी है जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर लिंक। सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब स्टार्ट और एंड सेपरेट होता है। अगर हमने एंड को स्टार्ट के साथ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा, राइट। सिंपल लिंक लिस्ट में लास्ट नोड को और फर्स्ट नोड को अगर कनेक्ट कर दिया तो पूरा सर्कल बन जाएगा, दैट इज व्हाई वी विल लेबल इट एज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये लिंक लिस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू कैन ऑलवेज लर्न अ लॉट इन दिस। बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्स, सर्च, सॉर्ट, मर्ज, लॉट ऑफ ऑपरेशन। इंडस्ट्री में लिंक लिस्ट बहुत पॉपुलरली पूछा जाता। डोंट फॉरगेट, नोड को डिफाइन करना है, डेटा डिफाइन करो, स्ट्रक्चर डिफाइन करो, वैल्यू और द पॉइंटर। पॉइंटर का काम क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस मेंटेन करो। अगर नेक्स्ट नोड का पता नहीं मालूम है तो नल से रिप्रेजेंट करो, दैट इज ओनली द वे, राइट। एक छोटा सा फंक्शन एक देखते हैं जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है और इंसर्शन किया है, राइट। इंसर्शन एट द एंड। यहाँ पे छोटा सा चीज यही याद रखना है, अगर आपके पास कोई लिंक लिस्ट बनती है, राइट, अगर आपके पास कोई लिंक लिस्ट बनती है, अगर आप पहले इंसर्ट कर रहे हो फर्स्ट नोड में ही इंसर्शन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन आपको आखिरी नोड में अगर इंसर्शन करना है, इफ यू वांट टू इंसर्ट एट द एंड, देन आपको हर एक नोड को ट्रैवल करके आखिरी नोड तक पहुंचना पड़ेगा। पहले इसके पास जाओ, यहाँ से यहाँ पे जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, तब जाके आप जब आखिरी नोड में आओगे देन यू क्रिएट अ न्यू नोड, राइट। तो ये ट्रैवर्सिंग में आपका क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा फंक्शन डिस्प्ले भी अगर लिखते हो, उसमें भी क्या है, पहले फर्स्ट नोड के पास जाओ, इसका वैल्यू प्रिंट करो, दूसरे नोड के पास जाओ, फिर उसका वैल्यू प्रिंट करो, नेक्स्ट नोड के पास जाओ, उसका वैल्यू प्रिंट करो। अब आगे लिस्ट नहीं है, ये नल आ गया है लिंक, तब आप रुक जाओ। मतलब क्या है, जब जब आप सारे नोड्स को विजिट करना स्टार्ट करते हो तब तक आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी वेरी एफिशिएंट एल्गोरिदम टू इम्प्लीमेंट। लिंक लिस्ट बहुत पॉपुलरली यूज होता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलता है और ये डायनेमिकली जितना जरूरत है उतना मेमोरी यूटिलाइज करने के लिए मिलता है। सो दैट इज ओनली द बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब भी आप सिंगल एलिमेंट के साथ काम करोगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ डिलीशन करोगे, इंसर्शन करोगे, ऑर्डर ऑफ 1 चलेगा। लेकिन आप पहला एलिमेंट नोड छोड़ के किसी और नोड के साथ काम करोगे, हमेशा ऑर्डर ऑफ n में चलेगा। चाहे वो इंसर्शन एट द एंड हो, इंसर्शन एट द मिडल हो, डिलीशन एट द एंड हो, डिलीशन एट स्पेसिफिक वैल्यू हो, एवरी टाइम वो ऑर्डर ऑफ n में चलेगा, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज for the linked list, right? Next data structure is trees. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। पेरेंट है, राइट, पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, पेरेंट चाइल्ड, राइट। इसमें एक पेरेंट 2 चाइल्ड हो सकते हैं, राइट। रूट नोड होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं। हायरार्की होता है, इसीलिए लेवल्स बनते हुए जाते हैं। जो एक पेरेंट के जो 2 चिल्ड्रंस रहते हैं उनको सिबलिंग कहा जाता है। जिन नोड्स के आगे कोई नोड्स नहीं होते हैं उसे हम लोग लीफ नोड कहते हैं,
और जिन नोड्स के पेरेंट भी होते हैं और चिल्ड्रंस भी होते हैं उनको हम लोग इंटरमीडिएट नोड्स के नाम से जानते हैं, राइट। जिनके पेरेंट्स भी होते हैं और चिल्ड्रंस भी होते हैं उनको हम इंटरमीडिएट नोड्स के नाम से रखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को रूट कहते हैं, राइट। एंड जिनके चिल्ड्रंस नहीं है उनको लीफ नोड्स कहेंगे या लीव्स कहेंगे, राइट। ये सब नोड स्ट्रक्चर है, ऑल दीज आर द नोड। एंड इनके बीच में इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, लेकिन वर्टेक्स पॉपुलरली हम लोग ग्राफ में यूज करेंगे, यहाँ पे हम इसे नोड के नाम से जानेंगे। एंड दीज आर नथिंग बट द एजेस यहाँ पे। इसमें और भी टर्मिनोलॉजी, जैसे रूट के आगे जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिसेंडेंट्स, राइट। एंड चाइल्ड के ऊपर जो होते हैं वो होते हैं एंसेस्टर्स, राइट। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज। इसमें सब ट्रीज बनते हैं, ट्रीज में सब ट्रीज बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज लेफ्ट सब ट्री, राइट, दिस इज राइट सब ट्री। ये क्या हुआ, ये राइट सब ट्री। आप किसी भी सब ट्री में जाकर उसका सब ट्री देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा वाला जो देख रहे हैं इसमें भी हम लोगों को एक सब ट्री लेफ्ट साइड में, एक सब ट्री राइट साइड में दिखाई दे रहा है। तो इन दिस वे फॉर एवरी ट्री देयर आर मल्टीपल सब ट्रीज। अब कितने भी सब ट्रीज बनेंगे तभी ये ट्री डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन ट्री का पर्टिकुलर पैटर्न क्या है कि वो हायरार्की को मेंटेन करता है। हायरार्की जब भी मेंटेन होगा तो वो लेवल वाइज चलता है। दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3, राइट। अब यहीं से हाइट एंड डेप्थ का कॉन्सेप्ट चलता है। डेप्थ, समंदर को याद करो, समंदर का डेप्थ गिना जाता है जहां से जमीन के ऊपर, राइट। और हाइट जो है वो जमीन के ऊपर आती है और डेप्थ हमेशा ऊपर से नीचे जाती है। रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट। इसीलिए हाइट जहाँ पे नोड्स है वहां से स्टार्ट करो, हाइट 0, 1, 2, 3। लेकिन डेप्थ क्या है, दिस इज डेप्थ 0, डेप्थ 1, डेप्थ 2, लाइक दैट वी हैव टू गो। सो लाइक हाइट एंड डेप्थ ये अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, ये पॉइंट याद रखना है, राइट। सब ट्रीज कैन बी देयर फॉर ऑल नंबर ऑफ ट्रीज। ऑल दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, रूट नोड, पेरेंट चाइल्ड है, लीफ नोड है, इंटरनल नोड्स है, लेवल ऑफ नोड्स होता है यानी हाइट एंड डेप्थ होता है, एंड डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड मतलब एक नोड के कितने चिल्ड्रंस हैं। डिग्री ऑफ नोड जैसे कि B, it has 3 children, तो डिग्री ऑफ नोड B is 3, डिग्री ऑफ नोड E is 2। पूरे ट्री का डिग्री अगर देखना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ ट्री जो रहेंगे दैट इज योर डिग्री ऑफ अ ट्री रहेगी, राइट। तो इस तरीके से ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को जो डील करना पड़ता है वो है जिसे कहते हैं बाइनरी ट्री। और इसमें बहुत सारी वैरायटी भी बनती है, जैसे फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, ऐसे बहुत सारे सब कैटेगरीज भी उसमें ऐड होते हैं। आगे जाके एडवांस लेवल पे इसमें बैलेंस ट्री का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे बहुत सारी आज की डेट की पॉपुलर एप्लीकेशंस बन रही है, रेड एंड ब्लैक ट्री, एवियल ट्रीज, right. All those are the very important type of application building trees, right. तो इन सब को कैसे देखना है, पहले बेसिक टर्म देखते हैं। बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री का मतलब क्या है, जिसमें आइदर 0 से लेकर 2 के बीच में नोड्स हैं वो सारे बाइनरी, राइट। मतलब उनके 0 चाइल्ड हो सकते हैं, उनके 1 चाइल्ड हो सकते हैं, उनके 2 चाइल्ड हो सकते हैं, राइट। बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन इसमें लेफ्ट एंड राइट 2 ही चाइल्ड बनना चाहिए, तीसरा चाइल्ड नहीं बनना चाहिए एवरी नोड के लिए, दैट इज ओनली द कंडीशन। अब इनके बेसिस के ऊपर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है। जैसे कि आप देखो फुल बाइनरी ट्री, आप देखो इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, इस तरीके से फुल बाइनरी ट्री बना हुआ है। सिमिलरली अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री को देखते हैं, इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड। आप ऑब्जर्व करो, व्हेनेवर आई एम सेइंग, आई एम ऑलवेज सेइंग रूट नोड, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। मैंने एक बार भी राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड ऐसा नहीं बोला। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि हमेशा लेफ्ट चाइल्ड पहले आना चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन यही है, अगर डिजाइन हो रहा है तो पहले लेफ्ट चाइल्ड आना चाहिए, फिर राइट चाइल्ड आना चाहिए। अगर आपका राइट चाइल्ड आता है और लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बन सकता है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड।
इनके ऊपर अलग अलग ट्रीज के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान से ये चीजों के ऊपर पढ़ना चाहिए, राइट। आप ये थर्ड एग्जांपल देखो, इसमें देखो रूट नोड है, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, लेकिन यहाँ का एक लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है। ये जो लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है और इधर में राइट चाइल्ड, ये बाइनरी ट्री तो है लेकिन ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री, right? This cannot be the complete binary tree, it cannot be the strict binary tree, it cannot be the full binary, वो सब पैटर्न से वो बाहर निकल गया। ऐसा जो ट्री रहेगा जिसमें लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है उसे हम लोग इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री के नाम से जानते हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस, you need to read about all these different types of trees. I'll show you some more examples of the binary tree. जैसे कि ये एक ट्री है, बाइनरी ट्री बोलता है उसका 0 चाइल्ड हो सकता है, उसमें 1 चाइल्ड हो सकता है और 2 चाइल्ड हो सकता है। यस, दीज आर द केसेस। एक 1 चाइल्ड 1 चाइल्ड 1 चाइल्ड 1 चाइल्ड, सारे सिंगल चाइल्ड वाले, राइट। ये भी बाइनरी ट्री है, इसमें भी 1 सिंगल चाइल्ड, ये भी बाइनरी ट्री है। हायरार्की तो फॉलो कर रहा है और 2 चाइल्ड से ऊपर नहीं है, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। लेकिन ऐसे जो ट्रीज होते हैं बाइनरी, जो एक ही डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्यूड बाइनरी ट्री। जो एक ही डायरेक्शन में ग्रो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्यूड बाइनरी ट्री, राइट। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट बाइनरी ट्री, 2 चाइल्ड कंपल्सरी होना चाहिए और लेफ्ट चाइल्ड पहले होना चाहिए। ये डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स नोट करो, याद करो एंड प्रिपेयर करो, राइट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्री को रीड करने के लिए क्या है, ट्रैवर्सल टेक्निक्स है। डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल्स में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर बहुत पॉपुलरली यूज किए जाते हैं, राइट। इनके कुछ सिंबल्स है, जैसे कि हम लोग प्री ऑर्डर करते हैं, राइट। हम लोग प्री ऑर्डर कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग रूट को सबसे पहले रखेंगे, then we will read the left child and then we will read the right child। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा प्री ऑर्डर के लिए। अगर हम लोग इन ऑर्डर करते, इन का मतलब होता है मिडल, तो लेफ्ट चाइल्ड पहले आना चाहिए इन ऑर्डर में, देन रूट इन द मिडल एंड देन राइट चाइल्ड आना चाहिए। दिस इज अवर इन ऑर्डर। एंड थर्ड वाला जो केस है जिसे हम लोग कहेंगे लेफ्ट चाइल्ड पहले आना चाहिए, फिर राइट चाइल्ड आना चाहिए और रूट सबसे लास्ट में आना चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑर्डर, राइट। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल्स, राइट, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर। तो हम लोगों के ट्रैवर्सल्स में ये अलग अलग टाइप के ट्रैवर्सल्स आते हैं। जैसे कि ये प्री ऑर्डर है, हमेशा रूट फर्स्ट आएगा, एफ बी ए डी सी ई जी एच आई, राइट, इसी ऑर्डर में वो फॉलो करेगा। सिमिलरली इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट चाइल्ड आना चाहिए, फिर रूट आना चाहिए, फिर ये जो भी सब ट्री है उसका लेफ्ट चाइल्ड आना चाहिए। तो इट विल स्टार्ट विथ ए, देन बी, देन सी, देन ई, देन डी, राइट। तो इन दिस ऑर्डर में वो हमेशा लेफ्ट चाइल्ड, रूट एंड द राइट चाइल्ड, डी ई, देन अगेन एफ, अगेन जी एच एंड देन आई, इन दिस वे। जब भी आप देखो एफ सेंटर में आया, ये लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट साइड में आता है, राइट सब ट्री राइट साइड में आता है। वैसे ही हमारा पोस्ट ऑर्डर भी होता है जिसमें रूट हमेशा एंड में आएगा, राइट, जिसमें रूट हमारा हमेशा एंड में आएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड द इन ऑर्डर टेक्निक्स। आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजों के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर होते हैं। तो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस टेक्निक्स, राइट। पढ़ना है तो ये चीजें पढ़ो। कुछ नाम मैं बताती हूँ, जैसे कि एडवांस पार्ट में बाइनरी सर्च ट्री होता है और जिसमें से एडवांस चीजें यानी कि नई नई एप्लीकेशंस बनाने के लिए एवीएल ट्री, रेड एंड ब्लैक ट्री, बी ट्री, सेगमेंट इन ट्री, ऐसे बहुत टाइप्स के ट्रीज बनाए जाते हैं, राइट। जैसे बाइनरी सर्च ट्री का खासियत क्या है, जो रूट नोड है उसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स उससे हमेशा स्मॉलर रहेंगे, राइट साइड के जो भी एलिमेंट्स है वो हमेशा उससे हमेशा ग्रेटर रहेंगे। सो दैट विल बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। एवीएल ट्री बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो करता है, लेकिन एक ही साइड में अगर ट्री ग्रो हो रहा है तो उसको बैलेंसिंग करने का काम ये एवीएल ट्री करता है।
एंड रेड एंड ब्लैक ट्री जो है ये रेड एंड ब्लैक दो कलर के ही नोड्स के साथ काम करता है। ये बाइनरी सर्च के भी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, एवीआर ट्री के रोटेशंस को भी अप्लाई करता है एंड नोड्स को हमेशा रेड एंड ब्लैक कलर में ही रखता है। तो इनकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है। आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा एज अ डेटा स्ट्रक्चर करके यूज किए जाते हैं। सो ऑल दीज आर द एडवांस पार्ट, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या क्या याद रखना है। तो बाइनरी सर्च ट्री रखो, राइट। क्या याद रखोगे? रूट नोड से जो भी लेफ्ट साइड का जो भी ट्री है, रूट नोड से जो भी हमारा लेफ्ट साइड का ट्री है वो सारी वैल्यूज लेस देन रूट नोड होनी चाहिए, और राइट साइड का जो भी हमारा ट्री है उसकी वैल्यूज रूट नोड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब जैसे ये रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है वैसे ही सब ट्री में भी होगा। रूट नोड से वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए, राइट साइड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, राइट। इस राइट सब ट्री में भी ये रूल अप्लाई होना चाहिए। रूट लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू लेस देन होना चाहिए, राइट चाइल्ड का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए। In this way, actually, you need to work with the binary search tree, right? यही इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये प्रॉपर्टीज याद रखो, ये इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? तो आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे तो जनरली वर्स्ट केस में तो सब कुछ ऑर्डर ऑफ एन होता है, लेकिन बेस्ट एंड एवरेज में ये लॉग ऑफ एन भी हम लोगों को मिलता है। क्योंकि इसमें एडवांटेज ये है, अगर सर्च करना है मुझे 25 तो मुझे हाफ पार्ट ऑफ द ट्री में ही करना है। हाफ पार्ट को मैं इग्नोर कर सकती हूँ क्योंकि आई नो इट इज इन द लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री में ही मुझे करना है, तो अदर राइट सब ट्री करने का जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल गेट समटाइम्स लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट वी कैन सी द ग्राफ। हर जगह में ट्रांसपोर्टेशन ग्राफ, रेलवे ग्राफ, सोशल नेटवर्क ग्राफ, इंटरनेट ग्राफ, डीएनए ग्राफ, all these are the different graphs, all these are the applications of the graph. ग्राफ में ज्यादा पार्ट तो नहीं होता है, बट इसका डेफिनेशन जो होता है वो ये है, G is equal to V, it is nothing but V मतलब set of vertices, E means set of edges, right? So in this way we have to work with the graph. ग्राफ ये क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी वर्टाइसेस एंड द एजेस होती है, राइट। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आज की डेट में ग्राफ बहुत पॉपुलरली यूज होता है, राइट। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में इसको नोड नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। है तो नोड ही, बट उसको कॉल करते टाइम ग्राफ में हमेशा हम उसे वर्टेक्स नाम से बुलाते हैं। एज इज द कनेक्शन, एज इज द कनेक्शन बिटवीन टू वर्टेक्स, राइट। और एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब A and B are the adjacent, A and E is the adjacent, D के adjacent अगर देखने हैं तो E, B and C, that is the meaning of adjacent vertex। हर वर्टेक्स का डिग्री होता है, जैसे E का कनेक्शन A के साथ है, B के साथ है और D, दिस इज द डिग्री ऑफ एजेस फॉर E नोड और E वर्टेक्स इज 3। डिग्री ऑफ B नोड A के साथ है, E के साथ है, D के साथ है और C, तो डिग्री ऑफ नोड B is degree of vertex for vertex B is 4. So in this way we need to calculate it, right? तो कोई भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से करें। It is a set of vertices, मतलब 1 2 3 4 5, all these are the vertices। Set of edges 1 to 3, 1 to 2, 3 to 4, 2 to 4, 4 to 5, all these are the edges, so that's why set of edges, right? इसमें एज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टेक्निक है, राइट। जब भी आप कोई एज डिफाइन करो यहाँ से यहाँ तक, राइट, इसे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज यू एंड दिस इज वी। बट जब भी इसका कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, दिस इज अ अनडायरेक्टेड एज, दिस इज कॉल्ड एज एन अनडायरेक्टेड एज। लेकिन अगर कोई एरो सोर्स एंड डेस्टिनेशन अगर मेंशन है, दिस इज अ डायरेक्टेड एज। इसका सोर्स जो है वो यू है एंड डेस्टिनेशन जो है वो बी है, so this is a directed edge। so based on these two type of edges, different type of graphs can be designed, different types of graphs can be designed। जैसे डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें डायरेक्टेड एजेस रहेंगी तो डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे, जिसमें अनडायरेक्टेड रहेंगी अनडायरेक्टेड ग्राफ। एज के ऊपर अगर वेट नंबर लिखा है 34, 55, 5, 7, दैट इज अ वेटेड ग्राफ। नहीं लिखा है अनवेटेड ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ, कनेक्शन बिल्ड हुआ है तो साइक्लिक ग्राफ। असाइक्लिक, सारे इंडिपेंडेंट है, राइट, तो इट इज असाइक्लिक। कनेक्टेड ग्राफ,
कनेक्टेड है, स्ट्रांगली कनेक्ट, सारे वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड, एंड अदरवाइज इट इज अ कनेक्टेड। डिसकनेक्टेड, सारे आइलैंड की तरह सारे वर्टेक्स बैठे हैं, तो दैट इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। सो इन दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स। ग्राफ को रिप्रेजेंट डेटा स्ट्रक्चर में कैसे लाना है, मैट्रिक्स एंड लिस्ट। मैट्रिक्स मतलब क्या, आप जितने भी वर्टेक्स है उनको रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करके एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स 0 और 1 में ही होता है, क्योंकि एज आइदर एज एग्जिस्ट होगा या फिर नहीं होगा। अगर एज है तो उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एज नहीं है तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट इट विद 0 एंड 1। दूसरा जो है अनडायरेक्टेड है, तो इसमें नंबर ऑफ एजेस थोड़ा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू द डायरेक्टेड। लिस्ट अगर है तो हम लिंक लिस्ट बना सकते हैं, ए से जाने वाले जितने एजेस है उन सबको आप कनेक्ट करो, बी से जाने वाली सारी एजेस को कनेक्ट करो, सी से जाने वाली सारी एजेस को कनेक्ट करो, तो ये लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इनको ट्रैवर्स करने के लिए डीएफएस एंड बीएफएस ये टेक्निक्स यूज होते हैं, जिनका इम्प्लीमेंटेशन स्टैक एंड क्यू जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके किया जाता है। अगर कुछ याद रखना है, अगेन आई एम सेइंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद रखो। हर एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 2 वर्टेक्स, क्योंकि एक रो में एक कॉलम में आता है, इसलिए बी स्क्वायर, एडजेसेंसी लिस्ट में बी प्लस ई, क्योंकि उसमें लिस्ट बनता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द अनदर इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इज हैशिंग। हैशिंग का काम है सर्च कर, राइट, एफिशिएंट सर्च के लिए हैशिंग जाना जाता है। इसमें होता क्या है, एक एरे जिसे हम लोग बकेट के नाम से जानते हैं, राइट, दिस इज योर स्लॉट एंड दिस इज योर एरे स्लॉट वेयर व्हिच इज नथिंग बट अवर बकेट्स। इसमें कौन से एलिमेंट को कहाँ पे लोकेट करना है ये डिसीजन होता है एक हैश फंक्शन के, और ये हैश फंक्शन कैलकुलेट करके हमें एक नंबर देता है, और वही हमारा मेमोरी एड्रेस का इंडेक्स होता है, और उसी लोकेशन पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट जाके स्टोर होता है। दैट्स वाई जब भी सर्च करेंगे तो इमीडिएटली हैश फंक्शन हमें उस इंडेक्स को देता है, एंड वी डोंट हैव टू रैंडमली सर्च फॉर ऑल लोकेशंस, वी कैन गो टू स्पेसिफिक लोकेशन। इसीलिए हैशिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका इंसर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1, इसका डिलीशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1, इसका सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1, ऑर्डर ऑफ 1 में ही चलता है, राइट। अगर इसकी टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पे हैश टेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैश टेबल, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर which stores the values which has been calculated based on the hash function। यहाँ पे अगर ऐसा कभी सिचुएशन आए कि 2 नंबर के लिए एक ही हैश वैल्यू आ रही है, then we call that situation as a collision। उसके लिए कोलिजन अगर अकर होता है, उसको हैंडलिंग टेक्निक्स भी है, जैसे चेनिंग वगैरह टेक्निक्स उसमें यूज होता है, लीनियर प्रोबिंग एंड चेनिंग, दीज आर द 2 टेक्निक्स दैट वी जनरली फॉलो। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है जिसे कहते हैं लोड फैक्टर। अगर कभी ये लोड फैक्टर का काम पड़ा, तो लोड फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द साइज ऑफ द टेबल, दैट इज ओनली द लोड फैक्टर। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, गेट एग्जाम्स में वगैरह भी इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, तो छोटे छोटे एमसीक्यूज जैसे उसमें फ्रेम होते हैं, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे याद रखना है, राइट। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कोई भी की वैल्यू दो, हैश फंक्शन एग्जीक्यूट करो, हैश वैल्यू जनरेट होगा, हैश टेबल में इंसर्शन होगा। दिस इज द फ्लो, दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द हैश फंक्शन वर्क्स। लेकिन अगर कोई 2 हैश वैल्यू, 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम हैश वैल्यू आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, कोलिजन इन हैशिंग। जैसे 10 एंड 15 का अगर कैलकुलेशन किया, दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका भी हैश वैल्यू 0 आया, इसका भी हैश वैल्यू 0 आया, तो ये दोनों वैल्यूज एक के ऊपर ओवरलैप होने लगी है, दिस इज कॉल्ड एज अ कोलिजन। ये पॉइंट इसे याद रखें। हैंडल कैसे करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लीनियर प्रोबिंग से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ जगह नहीं है तो नेक्स्ट लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं, दैट इज अ लीनियर प्रोबिंग टेक्निक। और अगर नहीं तो लिंक लिस्ट बना के नया लोकेशन इधर में सेट करके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ चेनिंग। तो 2 टेक्निक्स हम लोग फॉलो करके कोलिजन को हैंडल कर सकते हैं। बस इतना इंफॉर्मेशन हैशिंग के लिए काफी। अब मैं लास्टली एक समराइज वे में इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बताती हूँ। जब भी आप अपना सीकैट सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर करोगे, एट दैट टाइम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट का लॉजिक क्या है उसके ऊपर ध्यान दो। जस्ट थ्योरी रीड करके ऊपर से गया ऐसा मत करना, अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो प्रिपेयर इट विद द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशंस चलती है डेटा स्ट्रक्चर के लिए, उसके साथ को रिलेट करके अपना प्रिपरेशन करो, राइट। ये डेटा स्ट्रक्चर एक फाउंडेशन ब्लॉक है,
आप आगे में कोई भी कोर्सेस में जाओ, पीजीडैक, पीजीडीबीडीए या कोई भी इंडस्ट्री में डेटा स्ट्रक्चर लॉजिक बिल्डिंग करके पूछा जाता है, राइट? हर इंटरव्यूज में, हर प्लेसमेंट इंटरव्यूज में, कि हर प्लेसमेंट के फेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलपमेंट देता है। तो ये टेक्निक्स इंप्रूव करना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। स्पेशली ट्रीज एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स अच्छे से प्रिपेयर करो। आपका एमसीक्यू का स्पीड होना चाहिए, राइट? आप प्रैक्टिस करो, आप विजुअलाइजेशन टूल्स है बहुत सारे अवेलेबल, आप यूट्यूब में सिमुलेशंस देखो, या टूल्स, सिमुलेशन टूल्स में कोडिंग करके देखो, राइट? या फिर अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के चार्ट्स, छोटे छोटे चिट शीट्स बना के उसे प्रिपेयर करो। याद रखना, एक क्वेश्चन 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट। इन दिस वे यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, right? This is a general strategy for preparing the data structure.